Bangladeshi publication. In your today's EVS class, we are going to see your chapter number 10, and the name of your chapter number 10 is Water, oh Water. Okay, so what concept overview we are going to discuss in this chapter? Water pollution. Okay, we are going to see about water pollution, causes of water pollution, okay, effects of water pollution, every drop counts, and purification of water. Okay, and what curricular goals we are going to discuss in this chapter? Learn about the sources and uses of water in daily life. Okay, then understand the water cycle and conservation of water. Then appreciate the importance of clean water for health and environment. Okay, so all this topic, my dear student, we are going to discuss in this chapter. So come with me and let's see the chapter. Water is the basic need of all living organisms. It includes human beings, animals, and plants. We all need clean water to drink and for other needs. Okay, so which is the basic need for all living things? Water. Okay, so every living thing required the basic need water. Okay, so including human beings, animals, and plants, we all need water for our own survival. We need water to drink, we need water to purify our body, we need water for clothing purposes, and etc and etc. Okay, and you know what, my dear student, the total of earth area, okay, so total 100%, so in total of 100% area, 97% area is covered in water. Okay, and out of this 97%, 71% of water is stored in the form of sea and ocean. Okay, and the water which we can see available in sea and ocean, we are not going to drink them because they are non drinkable water. Why they are non drinkable? Because there is salt present in them. Okay, salt hai usme, theek hai? Only 3% is fresh water which we can drink. Okay, so it means, my dear student, in our whole planet Earth we have only 3% of drinkable water. Okay, now water pollution. So water pollution kya hai, dekh lijiye. Okay, now what is water pollution? Let's see. Harmful chemical substances from homes and factories, fertilizers, pesticides, sewage and dead bodies make the water impure and unfit for drinking. This is called water pollution, and the substance which cause pollution are called pollutants. ठीक है, हमारे घरों से, हमारी फैक्ट्रीज से, ठीक है, फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से, पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से, साथ ही साथ हमारे सीवेज की वजह से और डेड बॉडी को भी डंप करने की वजह से हमारा पानी गंदा हो रहा है. ठीक है, और अगर पानी है गंदा, इट मीन्स व्हाट? दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. ओके, सो दिस unfit water is called as water pollution. Okay, and the substances which is continuously causing water pollution is called as your pollutants. Okay, now my dear students, we are going to see causes of water pollution. So what are the causes of water pollution? See, throwing dead bodies in water. So, okay, so whenever we throw any dead body in water, ultimately what? That dead body is going to pollute our water. Then oil is spilled by ships and tankers. Sometimes what happened, very large oil tankers, okay, very large ship carrying oil tankers, okay, exploded in the middle of the sea, okay, in the middle of the ocean or seas. Okay, and due to which our water also get polluted. Okay, discharge of industrial waste in water. So all the discharge, all the bad water coming from our factory area, ultimately they dump their wastage into water. That's why our water become polluted. वॉशिंग क्लोथ्स ऑन द रिवर बैंक. आप लोग नदियों के किनारे जो हम लोग कपड़े धोते हैं, उसकी भी वजह से क्या हो रहा है? वाटर पोल्यूशन हो रहा है. डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इन वाटर बॉडीज. ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट, हमारे घरों का डोमेस्टिक वेस्ट में कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली घरों में, अल्टीमेटली पानी में जा रहा है. तो ये सारी वो वजह है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है. Now, effects of water pollution. What are the effects of water pollution? Let's see. When polluted water is used by animals or human beings directly or indirectly. ठीक है, polluted water human beings या कोई भी living being अगर directly या indirect वे में consume कर रहा है, तो कौन कौन से effect होंगे? So पहला effect, my dear students, it can cause diseases like typhoid, cholera, jaundice, diarrhea, etc. तो गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है. टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया एक्सेट्रा, ये सारी बीमारियां हमें घेर लेंगे. फिर बारी आती है एक्वेटिक एनिमल्स बिकम सिक एंड डाई इन पोल्यूटेड वाटर. हमारी पानी में बहुत सारी लाइफ रहती है, एक्वेटिक लाइफ रहती है, तो गंदा पानी होने की वजह से वो भी मर जाते हैं. ठीक है, फिर बच्चों क्या होता है देख लीजिए.
जो पल्यूटेड वाटर है, पल्यूटेड वाटर हमारे सॉइल को भी इनफर्टाइल बनाता है, ठीक है। और अगर सॉइल इनफर्टाइल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी खेती इफेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमारा वाटर प्लांट्स होते हैं, हमारे प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो पानी में होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी इन्फेक्टेड होते हैं और वो भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों ये देखिए, अब पानी गंदा है, पानी में फिश होती है, बहुत सारे फिश को हम ह्यूमंस खाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस पल्यूटेड, अगर आप उस इन्फेक्टेड एक्वेटिक एनिमल को अगर आप खाते हो, फिश को खाते हो, तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी जर्म्स और वायरस प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी में आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम भी बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब लोगों को वाटर पोल्यूशन को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। और हम अपनी वाटर बॉडी से क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे वाटर पे सिर्फ और सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, ठीक है। चलिए, नाउ एवरी ड्रॉप काउंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, एवरी ड्रॉप काउंट्स, इसका क्या मतलब है, देखिए, वाटर जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, जबकि हमारे प्लैनेट अर्थ का टोटल 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। लेकिन बच्चों ये पानी जो है ना 70%, ये हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर है तो आप किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्रेश वाटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3% अवेलेबल है, और ये किस फॉर्म में अवेलेबल है, ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, जो पानी यहाँ पर रिवर, पॉन्ड या लेक्स में है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये इतना कम पड़ जा रहा है, इसीलिए पानी की कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। So my dear student, so for the removal of this shortage of water, we need to save each and every drop of water. Okay, so हमें क्या करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। तो पानी बचाने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा तरीका है पानी बचाने का। बरसात होता है, बरसात के पानी को आप किसी भी कंटेनर में कलेक्ट कर लीजिए और उसको बाद में अपने काम के लिए यूज कीजिए, क्योंकि रेन वाटर क्या है, सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। जब पानी बरसता है तो सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड। नाउ ट्रुथ बैंक, यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। ट्रुथ बैंक में फ्रोजन वाटर इज स्लाइटली लाइटर देन लिक्विड वाटर, दैट्स व्हाई वी सी आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर। जो हमारा फ्रोजन वाटर होता है, ठीक है, वो फ्रोजन वाटर हमारे फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट वेट होता है, इसीलिए जितने भी बड़े बड़े आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस शीट्स होती हैं, ये सब हमारे फ्रोजन वाटर पे ही फ्लोट कर सकती हैं, ठीक है। नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है देख लीजिए। पोटेबल वाटर क्या होता है बच्चों, पोटेबल वाटर वो पानी है जो हम पी सकते हैं, ओके, उसको हम पोटेबल वाटर कहते हैं। तो पानी आपका रिवर, लेक और रिजर्वायर, अदर वाटर बॉडीज का जो पानी आपके रिवर में और बाकी रिवर में, लेक में, रिजर्वायर्स में या और दूसरे वाटर स्टोरेज में होते हैं, वहां से उन पानी को लाया जाता है एक चैनल के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। मतलब बच्चों देखिए क्या होता है, बरसात हो गई, बरसात का पानी आपका रिवर में, लेक में, रिजर्वायर में या और भी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ वाटर में, वाटर स्टोरेज में क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। बट वो पानी अब गंदा हो चुका है, क्योंकि पानी जो आपके रिवर में, लेक्स, उसमें इंप्योरिटीज होती हैं। क्यों इंप्योरिटीज होती हैं, क्योंकि उसके नीचे जमीन होती है, ठीक है। तो जमीन में इंप्योरिटीज हैं, ठीक है। तो पानी यहाँ से सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटमेंट मेथड के जरिए उस पानी को फिट किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में, ठीक है। वहीं से ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे फिट किया जाता है, पानी पीने लायक कैसे बनाया जाता है, वहां पे बच्चों सबसे पहले इंप्योरिटीज रिमूव की जाती हैं, बड़े बड़े मशीन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, ताकि जो भी क्लीनिंग के अलावा भी अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट है तो वो केमिकल से मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको वाटर टैंक्स में डाला जाता है, इन ट्रीटेड पानी को वाटर टैंक्स में डाला जाता है, ठीक है। फिर यही वाटर टैंक के पानी हमारे घरों में टैप वाटर के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। टैप वाटर के फॉर्म में हमारे घरों में ये पानी पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज आवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स सी वाटर कैन बी मेड सेफ एट होम बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अच्छा, अभी तक तो हमने जो देखा वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी आप बॉईल कर, मतलब पानी आप क्लीन कर रहे हो। हम अपने घर में भी पानी को क्लीन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं विच वी कैन फॉलो एट आवर होम आल्सो। बॉइलिंग मेथड, तो सबसे पहला तरीका है बच्चों बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग, जब आप पानी को उबालते हो ना, तो पानी जब उबलता है तो पानी में जो भी जर्म्स है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, वो मर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बॉइलिंग मेथड का यूज कर सकते हो पानी को
फ्रेश करने के लिए, ठीक है, ड्रिंकेबल बनाने के लिए, ठीक है। और जब वो बॉइल्ड पानी ठंडा हो जाए आप उसको पी लीजिए, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों, हम लोग अपने घरों में कुछ केमिकल्स का भी यूज करके अपने पानी को क्लीन कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन टैब है, क्लोरीन टैबलेट्स होते हैं, इन टैबलेट्स को पानी में डाल दीजिए, हमारा पानी फ्रेश हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्लोरीनेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन टैबलेट का यूज हो रहा है, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है हमारे फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखिए, फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है जब आप सॉलिड इंप्योरिटीज जो कि सॉलिड फॉर्म है, जैसे डर्ट है या सैंड है, ठीक है, इनको फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम अपने पानी से रिमूव करते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे यूवी प्यूरिफायर्स हमारे पास आ गए हैं। इन प्यूरिफायर्स का हम लोग यूज करते हैं अपने पानी को जर्म से फ्री करने में, ठीक है। हमारे घरों में आरओएस होता है, आरओ सिस्टम होता है। आरओ सिस्टम का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, ठीक है। आरओ का पानी हम सब लोग पीते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, पानी को क्लीन करने का ही तरीका है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ दिस चैप्टर। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी है कि हमारा पानी गंदा कैसे होता है, ठीक है। हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे घरों से, फैक्ट्रीज से निकल रहे हैं, हम लोग जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सीवेज से जो पानी निकल रहा है, और जो डेड बॉडीज है, ये अल्टीमेटली पानी में ही जाता है और ये पानी को गंदा कर देते हैं, ठीक है। पल्यूटेड वाटर क्या करे, पल्यूटेड वाटर सिर्फ हमें बीमार नहीं कर रहा है, पल्यूटेड वाटर हमारे एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गंदा पानी पी लेते हो तो गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे टाइफाइड, डिसेंट्री, डायरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, पोटेबल वाटर क्या होता है, पोटेबल वाटर वो पानी होता है जिससे आप पी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए, हम सब लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए पानी को बचाने को लेकर, क्योंकि पानी का शॉर्टेज है, इसीलिए वी शुड कंजर्व आवर वाटर। देन हम लोगों को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी पानी हम पी रहे हैं वो क्लीन हो, ठीक है। So, my dear student, this is all about our chapter. Now, just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.